Okay, so these are the questions. So we may not have time to discuss all of them, like to write the query of all. So let us start with the first one. So find the doctor who has treated the highest number of unique patients. Okay, so I'll So in the admissions table, you can directly get like the attending doctor ID and group by on the attending doctor ID and do a count distinct of patient ID, and that will give you the like all the unique count of all the patients that a doctor has treated, and just then you can just order by like on the aggregated column, that is like unique patients, and just use a limit one to get the top doctor. Then the second question is list patients who have been admitted more than once along with their admission count. So this is also a basic group by. So what we need to do is list patients. So like it would be, I'll write the query directly over here. Select patient ID count star as admission from admissions, and then I told you about the having clause filtering. So first I'll group by on one, then having filter on admission greater than more than once. So greater than, and this will give you the solution to this question. So for each city, you need to calculate average average length of stay for admitted patients. So for like in this case, what we have is the province names, city. So we can get the city from patients table, and then join the admissions table and patients table on on patient ID. So we'll join and we will get like each city. Then just directly group by on city and do what average. So this would be easy. Select star from patients P join admissions A on A dot patient ID equals to P dot patient. So is it entirely frozen? Like okay, so like there must be a lag, just a lag. So that's not. So I've joined the patient ID. I've joined the patient's table on admissions table, and then directly group by on P dot city and P dot city comma average of. In this I can just subtract uh, discharge date minus admission date, and whatever is actually the date diff function for like any particular database that you're using, you can use that directly between like so. This will and yeah, so this will give me the average stay for each city. Okay, some average values are appearing. So that I think you may have done. So that shouldn't be the case if discharge date is greater than admission date. Maybe you have done the opposite. That might be like subtracting admission date from the discharge date. Let's see in the database itself. So if the discharge date is less than admission date, only then that can be possible. But let me solve the question here itself then, if you're saying so. So I'll just copy paste. Yeah, that's what I'm thinking. Data might have some issue. Yeah, sure. You can share the screenshot in the group.
Okay, so this is what you are saying. So, the function that I've used is completely wrong over here. So, for SQLite tables, I can't use this directly. That might have been the reason for your the negative values. So, I think for SQLite, we need to do a Julian day or something. I don't remember the syntax. So, syntax you can easily look up on the internet. Yeah. So, Julian day, Julian day. If we try this, maybe then it should work. Okay, now you're saying the negative values, these negative values. So let us see for the city and caster if uh, so Ancaster city has some issue in its data maybe. So let's just do a p dot city is equal to Ancaster and we'll fetch all of the data. So so definitely there is some data issue that I'm unable to fetch. Maybe wait a second. Let us do this. And order by one DSC. And this gives us an easy way. Oh. So you see, there shouldn't be an issue. So like the discharge date is always greater than. Oh, I need to do ASC. So you see, this is the issue. So whenever there was so some patients may exist for whom there is no discharge date. So it isn't the question of like if your query was correct. Maybe you should have looked at the data that you should have excluded the data where the discharge date was this particular date. So a patient got admitted but hasn't been discharged yet. So rather than using the null values, the database is using a default date system that is like 1971. So such cases should also be handled in the query. So like by looking at the data. So this is the data. So you should exclude all the patients whose discharge date is this. So what I would actually do over here is now uh, a dot discharge. So these are the cases that actually do happen, like not always in the interview, but in interview, yeah. So outliers will exist in real time data and you should like think of that as well, but like for learning the concepts it's not a necessity. So what we'll do is just so now you see like there is no negative values. Yeah. So whenever if you see any anomaly in the data, try to like deep dive on how you can find that a single value of that anomaly. So like in this case, I knew so I needed to so I saw the like कि जितनी भी सिटी जो है जिनका एनकास्टर वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यूज आ रही है किसी एक में आ रही होगी दो में आ रही होगी क्योंकि एवरेज नेगेटिव आ रहा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नेगेटिव तो फिर मैंने जो नेगेटिव को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं जो उनका डेल्टा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा तो नेगेटिव टॉप पे आएगा मेरा एंड उस वे में मैंने डिस्चार्ज डेट एंड एडमिशन डेट भी साथ में लिए ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि कहाँ पे एक्चुअली इशू आ रहा है अगर मैं ये हटा के सिर्फ ये देखता तो स्टिल मैं जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो नहीं पता चलती
सो लाइक व्हेन जब भी कोई एनॉमली वगैरह निकालनी हो तो पूरा जितना हो सके डेटा के अंदर घुसना. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, कहाँ से आपको. ओके, सो अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया. फाइंड टॉप 3 डॉक्टर्स हुज पेशेंट्स हैड द लॉन्गेस्ट एवरेज स्टे. सो पहले तो हम एवरेज लॉन्गेस्ट स्टे हर पेशेंट का निकालेंगे. सो अब इसमें सी टी यूज़ होगा. एंड सी टी मतलब हमने थोड़ा बहुत किया भी था, तो लाइक सी टीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक क्वेरी को अलग उस वे में लिखना है. चलो फिर भी हम फिर से सी टी करते हैं. सो व्हाट विल डू इज हमें वो सारे पेशेंट्स निकालने हैं, वो सारे डॉक्टर्स निकालने हैं जिनके पेशेंट्स का लॉन्गेस्ट स्टे है. तो इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. सबसे पहले लेट्स फाइंड द पेशेंट्स हु हैड द लॉन्गेस्ट एवरेज हॉस्पिटल स्टे. सो विद एक्स एज हम कर लेंगे एंड सिलेक्ट पेशेंट अंडरस्कोर आईडी, सेम वही जूलियन डे वाला एवरेज कर लेंगे, एवरेज डिस्चार्ज डेट वाला. तो यहाँ पे हमारी पेशेंट्स की, हर पेशेंट की वो आ जाएगी कि कौन हुआ. उसके ऊपर फिर मैं लिमिट टॉप 3 डॉक्टर्स हु हैड द लॉन्गेस्ट, हु हैड द पेशेंट्स हुज पेशेंट्स हैड द लॉन्गेस्ट एवरेज हॉस्पिटल स्टे. सो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में भी वो है. सो व्हाट विल डू इज हम सिर्फ एक पेशेंट ले लेंगे जिसका भी लॉन्गेस्ट स्टे था, क्योंकि यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहिए था मेरे को. हुज पेशेंट हैड द लॉन्ग, हुज पेशेंट्स भी हो सकता है, जो भी एक लास्ट नंबर आएगा ना लॉन्गेस्ट स्टे का, वो हमें लेना है. एंड उसके जो भी रेलेवेंट डॉक्टर थे, एक डॉक्टर भी हो सकता है, 2 डॉक्टर भी हो सकते हैं, टॉप 3 देने हैं. और टॉप 3 के 3 डॉक्टर्स भी सेम हो सकते हैं, अगर सेम मतलब सेम ही डॉक्टर बार बार मतलब लॉन्गर एवरेज वालों को ट्रीट कर रहा है. तो सो लिस्ट पेशेंट हुज वेट इज अबव द एवरेज वेट ऑफ पेशेंट्स इन देयर प्रोविंस. सो हर प्रोविंस का एवरेज वेट निकालेंगे एंड फिर प्रोविंस और पेशेंट आईडी पे ज्वाइन करके ये सेम सिटीज तो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है, तो सेम यहाँ पे भी सिटी होगा कि लाइक जी पहले पेशेंट हर प्रोविंस का एवरेज वेट निकाल लिया, फिर हमने ज्वाइन किया पेशेंट टेबल से, एंड फिर वेयर फिल्टर लगाया कि जिसका भी वेट अबव वो है. सो मतलब फाइंड द डायग्नोसिस दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ईच प्रोविंस. हाँ, तो हर प्रोविंस पे ग्रुप बाय करेंगे एंड the diagnosis that occurs most. So विदाउट सीटी फिर तुम्हें अंदर ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे, वो सब क्वेरी बन जाती है. ओके. ओके, सिलेक्ट किया डॉक्टर. ओके, डॉक्टर्स ज्वाइन कर लिया. ऑर्डर बाय किया एवरेज टाइम स्टे से. हाँ, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ. सो इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें हर पेशेंट का एवरेज स्टे नहीं है, लॉन्गेस्ट एवरेज स्टे. ये हर पेशेंट, ये सॉल्यूशन गलत होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे तुमने डॉक्टर के बेसिस पे एवरेज स्टे लिया rather देन पेशेंट के. सो हमें पेशेंट के उस पे एवरेज स्टे चाहिए. सो इसमें जैसे ग्रुप बाय तुमने डॉक्टर का किया, सो ग्रुप बाय डॉक्टर पे करने की वजह से उस डॉक्टर के जितने भी पेशेंट्स थे सभी का फिर वो एवरेज थे मतलब काउंट हो जाता है, एक सिंगल. बट क्वेश्चन में दोबारा देखना, हुज पेशेंट्स हैड द लॉन्गेस्ट. सो काइंड ऑफ क्वेश्चन में के अकॉर्डिंगली ये भी सही होना चाहिए. थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, बट आई थिंक जब मतलब इंटरव्यू वगैरह में आता है तो क्वेश्चंस पूरा अच्छे से क्लियर आता है. तो बट द कंसेप्ट जैसे सॉल्व कर रहे हो अच्छा है काफ़ी. फाइन. लिस्ट पेशेंट्स हु हैव बीन.
सो ये वाला हो गया हमारा। जैसे फाइंड द डायग्नोसिस दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ईच प्रोविंस। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन पे थे। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा हर प्रोविंस का अकर कर रहा है, तो हमें वो चाहिए, राइट। तो हर प्रोविंस का अगर मैं मैक्सिमम अकरिंग हम निकाल के फिर उस पर ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ओके ओके, नहीं हम विंडो फंक्शंस अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो विंडो फंक्शंस के बिना करना है। सबसे पहले हमें प्रोविंस के बेसिस पे निकालना है। क्या था क्वेश्चन से? सो लिस्ट द find the diagnosis that occurs most frequently in each province। okay, province का प्रोविंस एंड डायग्नोसिस के बेसिस पे हम काउंट कर सकते हैं। सो दैट वुड बी, पहले हम प्रोविंस नेम्स पहले टेबल से ज्वाइन करेंगे, pn ज्वाइन प्रोविंस आईडी हमारी कहाँ पे यूज़ हो रही है? पेशेंट्स में। सो पेशेंट्स टेबल से ज्वाइन होगा, एडमिशंस टेबल से ज्वाइन होगा। एंड ऑन a dot patient id एडमिशन से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। एडमिशंस ज्वाइन पेशेंट p a dot patient id इज इक्वल टू p dot patient id, फिर दोबारा नेक्स्ट ज्वाइन लगेगा। तो हाँ, शायद मैंने ये लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था मैंने कि मल्टीपल ज्वाइंस भी हम लगा सकते हैं डायरेक्टली। सो जब भी मल्टीपल ज्वाइंस लगाने, पहले आपने फर्स्ट ज्वाइन अपना डिक्लेयर कर दिया, फिर सिमिलरली जो इसके रिजल्ट पे है उस पर फिर हम सेकंड ज्वाइन लगाते हैं। सो ज्वाइंस हमेशा मतलब सिक्वेंशियली लगेगा। पी एन ओन पी एन डॉट प्रोविंस आई डी इक्वल्स टू पी डॉट प्रोविंस आई डी। तो हमारा पेशेंट्स, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हर प्रोविंस के बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोविंस नेम पे कर लेते हैं, ओके। काउंट डायग्नोसिस चाहिए हमें। पी एम, सो मोस्टली तो ऑर्डर बाय 1,3 DSC। तो हर एक का हमारी टॉप वैल्यू आ गई है ये, एंड फिर हमें ये चाहिए। तो इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाता है विदाउट विंडो फंक्शंस, बट हम करेंगे इसको विदाउट विंडो फंक्शंस ही। सो हमारे पास ये आ गया जो भी अकाउंट है, हम इसको x मान लेते हैं। अब क्या करूँगा मैं, अगर मैं x से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा काउंट क्या है, तो x डॉट हमारा जो प्रोविंस नेम है उस पर अगर मैं अब ग्रुप बाय करता हूँ, एंड मैं मैक्स वैल्यू ऑफ मेरा जो काउंट स्टार है, लेट्स से CNT हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो हमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया पहले, कि पहले हमने हर प्रोविंस की हर डायग्नोसिस का एक एक काउंट निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, जिसका भी सबसे ज़्यादा काउंट है वो वाली वैल्यू चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, जिस जिस जो भी जिस जो सबसे ज़्यादा काउंट है वो निकालने की कोशिश करते हैं फिर से। तो अब हमारे पास हर प्रोविंस की हाईएस्ट काउंट क्या है वो आ गया। अब इससे जो कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायग्नोसिस है वो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इसी को अगर मैं इसके ऊपर ज्वाइन करूं ऑन प्रोविंस नेम एंड CNT, तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग डायग्नोसिस भी आ जाएगा हमारे पास। सो फिर से हम इसको एज अ CT डिक्लेयर कर देंगे, लेट्स से वाई। तो अब हम क्या करेंगे, वाई से इंफॉर्मेशन लेंगे, एक्स पे ज्वाइन करेंगे, वाई डॉट प्रोविंस नेम इज इक्वल टू एक्स डॉट प्रोविंस नेम, एंड हमें फिर CNT पे भी करना है, एक्स डॉट CNT इज इक्वल टू वाई डॉट CNT। तो अब आपका जो सॉल्यूशन है, तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास हर प्रोविंस की, अब जैसे जहां जहां पे भी टाई हुआ है, अब जैसे मनीतोबा में फॉर 2 काउंट टाई हुआ है, तो हमने सारी की सारी लिस्ट कर दी है जो उस पर्टिकुलर टॉप पे आ रही है वैल्यू पे। सो यहाँ पे सभी का टाई है, तो हमारे पास वो वैल्यूज भी आ गई है। या सो विदाउट विंडो फंक्शंस, सिर्फ ग्रुप बाय एंड जॉइंस और जो भी हमने सीखा है उसके बेसिस पे दिस इज द सॉल्यूशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट्स व्हाई इट्स अ हार्ड क्वेश्चन, कि तुम्हें मतलब प्रॉब्लम को डिवाइड कर करके कैसे स्टार्ट करना। तो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है पहले उसको डिवाइड करनी होगी, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, फिर मैं उस इन्फॉर्मेशन से आगे क्या निकाल सकता हूँ, फिर मैं उस इन्फॉर्मेशन से क्या आगे निकाल सकता हूँ। तभी हम CTs का बार बार यूज करते हैं। CTs एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि एक आपने जो ये क्वेरी लिखी है, इसको एक बस नाम दे दिया एक्स, अब इसका जो भी रिजल्ट है वो काइंड ऑफ एक्स में स्टोर हो रहा है हाइपोथेटिकली हमारे लिए। तो अब फिर डायरेक्टली हम एक्स को एक्सेस कर सकते हैं कि बार बार सेम क्वेरी लिखनी ना पड़े, इसलिए हम ये CTs यूज करते हैं। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, सो हम फिर नेक्स्ट पे आते हैं। लिस्ट पेशेंट्स हु हैव बीन ट्रीटेड बाय मोर देन वन डॉक्टर, तो काफ़ी बेसिक हो जाएगा। ग्रुप बाय ऑन पेशेंट आईडी करेंगे, एंड काउंट डिस्टिंक्ट अटेंडिंग डॉक्टर आईडी पे लगाएंगे, एंड हैविंग क्लोज फिर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, नहीं ग्रेटर देन वन करना पड़ेगा, मोर देन वन डॉक्टर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सो फॉर ईच डॉक्टर शो द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड एंड परसेंटेज ऑफ दोज हु लिव इन द सेम सिटी, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ग्रुप एडमिशंस और उसको ज्वाइन करेंगे, एंड सिटी है या नहीं डॉक्टर वाले टेबल में, चलो डॉक्टर टेबल में सिटी है ही नहीं। ओके, सो इस क्वेश्चन की रेलेवेंस नहीं है, बट एज्यूमिंग एज्यूमिंग कि डॉक्टर्स टेबल में सिटी होती, तो हम इस क्वेरी को कैसे लिखते हैं, डॉक्टर जो डॉक्टर टेबल है, डॉक्टर पेशेंट एंड एडमिशंस टेबल तीनों को ज्वाइन करते हैं पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी पे, एंड फिर हम ग्रुप बाय करते हैं डॉक्टर पे। और उससे पहले हम क्या करते हैं, ओके नंबर ऑफ पेशेंट हाँ, उसके बाद हम ग्रुप बाय करते हैं डॉक्टर पे। फिर सबसे पहले जो सेकंड है वो होता है कि काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो उसने ट्रीट किया, दैट वुड हैव बीन काउंट डिस्टिंक्ट पेशेंट आईडी जो भी उसने ट्रीट किया। फिर परसेंटेज, फिर हम यहाँ पे केस वन स्टेटमेंट लगाते हैं, केस व्हेन डॉक्टर डॉट सिटी इज इक्वल टू पेशेंट डॉट सिटी, एंड ये हमारे रिजल्ट दे देता। अब इसमें ये सिटी अवेलेबल नहीं थी, बट अगर होती तो कैसे सॉल्व करते, दिस वुड हैव बीन द वे टू सॉल्व इट। फाइंड द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेशेंट एडमिटेड फॉर ईच डायग्नोसिस, डायग्नोसिस पे ग्रुप बाय करोगे, पेशेंट आईडी जो भी आपकी, पहले तो एज निकालोगे कि हर पेशेंट की एज क्या है करंट डेट से माइनस करके, जो भी उनकी DOB है। फिर यहाँ पे ग्रुप बाय ऑन डायग्नोसिस, एंड मीन और मैक्स लगा दोगे बस एज पे, दैट इज इट। अब उसके बाद मीन मैक्स लगा दिया, एज आ गई है, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो, बट मीन ओल्डेस्ट पेशेंट, हाँ फिर सिमिलर जो मैंने अभी किया उसके बेसिस पे होगा। जो यहाँ पे एज आ गई है, एज के यहाँ तक जैसे एज आ गई, फिर पुराने डेटा के साथ ज्वाइन करोगे, जिसकी भी एज इसके बराबर है वो उसका तुम्हारा कोरस्पॉन्डिंग पेशेंट है। लिस्ट पेशेंट हु आर एडमिटेड इन 2 different
प्रोविंसेस, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोविंस हमने एडमिशन्स की दी ही नहीं हुई है। सो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, इसका कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। हु हैज़ ट्रीटेड द मोस्ट पेशेंट विद डायग्नोसिस, ये आगे ये बहुत इसमें वेयर क्लॉज लगाओगे आप डायबिटीज़ पे एडमिशन्स में, एंड डॉक्टर आईडी पे ग्रुप बाय करोगे एंड काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय एंड लिमिट, तो तुम्हारे पास एक डॉक्टर आ जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा पेशेंट ट्रीट किया विद द डायग्नोसिस डायबिटीज़। सो बाकी क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे एक्सप्लेन करूंगा विद सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग, बट अभी और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी से का आगे वाला पूछना है, या पुराने वाले किसी क्वेश्चन जो मैंने किया उसमें डाउट है तो वो बताओ। अनुज, जो 10th क्वेश्चन आपने बोला था कि लिस्ट पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन टू डिफरेंट प्रोविंसेस, ये वैलिड ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि हर पेशेंट की सिर्फ एक ही प्रोविंस है एंड ही कांट मूव, लाइक क्योंकि हमारी जो प्रोविंस है वो पेशेंट स्टेबल से आ रही है एंड हर पेशेंट की सिर्फ वो एक ही एग्जिस्ट करती है रो उसमें। सो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है हमारा उस वजह से। एक बार मैंने चैट बॉक्स पे उसका आंसर लिखा था, तो एक बार देख के बताइएगा। नहीं, वो आंसर गलत ही होगा। एक बार ओके, पी डॉट प्रोविंस आईडी लिया तुमने, काउंट ओके, सीटी बनाया, ठीक है, प्रोविंस आईडी एंड पेशेंट आईडी लिया, एडमिशंस एंड पेशेंट टेबल से डिस्टिंक्ट काउंट ले लिया तुमने हर बंदे का, बट ये जो सीटी है उसकी रेलेवेंस ही नहीं है। सबसे पहले तो पूरा ये मैं उठा के डालता हूँ। सो तुम बोल रहे हो ये क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस सीटी की कोई रेलेवेंस नहीं रहती है, बस इसमें सिर्फ ये आ जाता है जो पेशेंट्स एडमिट हुआ तुमने उसका प्रोविंस आईडी और पेशेंट आईडी निकाल लिया, एंड ग्रुप आई की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्टिंक्ट हुआ। सो तुमने ये क्वेरी हमें देती है हर प्रोविंस और पेशेंट आईडी जो एडमिट हुआ है उनका कॉम्बो, ठीक है। अब क्या होता है, तुम उससे फैच कर रहे हो इन्फॉर्मेशन एंड ये आपको रिजल्ट दे ही नहीं सकता। अगर तुमने इससे रिजल्ट आ रहा है, हाँ, तो नो रोज टू डिस्प्ले ही होगा इसमें, बट ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है जब, क्योंकि एक पेशेंट का एक से ज़्यादा प्रोविंस हो ही नहीं सकता, तो ये सॉल्यूशन भी गलत ही होता है। अगर जब क्वेश्चन ही गलत है सॉल्यूशन की कोई वो नहीं है। अगर हमारा जो प्रोविंस है एडमिशन टेबल से आता देन इट वुड हैव मेड सेंस कि जब भी क्योंकि उसमें हमें हॉस्पिटल का एड्रेस आ रहा है रादर देन पेशेंट का एड्रेस। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? हाँ संदीप, अनम्यूट करके बोल सकते हो। अनुज, क्वेश्चन नंबर 19 में एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट्स अगर हमें निकालना है तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए पेशेंट आईडी 1 है, वो 2 बार एडमिट हुआ है। फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ 2 दिन के लिए, फिर सेकंड टाइम एडमिट हुआ 3 दिन के लिए। तो यहाँ पर जब हम एवरेज आउट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज, मतलब मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, हाँ, तो 2.5 सम आना ऑफ, चाहिए। हाँ, तो फिर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स 2 होगा, मतलब ये नंबर ऑफ डिनोमिनेटर में स्टेज नंबर ऑफ होना पेशेंट्स 2 चाहिए। होगा या 1 होगा? ओके, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। शो द टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस, सो एवरेज लेंथ ऑफ, जब स्टे आपकी बात कर रहे हो तो आप नीचे पेशेंट ऑफ, जैसे एक पर्टिकुलर पेशेंट है उसका एवरेज स्टे जो तुमने मैथमेटिकली बताया 2.5 आना चाहिए, ओके, डिवाइडेड बाय पेशेंट्स नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडमिशंस ही होगा। एडमिशंस होगा ना? एग्जैक्ट, या ओके, ये सारे क्वेश्चंस मैं अच्छे से ऑन टेक्स्ट फिर ग्रुप पे भी डाल दूंगा विद एवरी एक्सप्लेनेशन जो भी होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब बाकी सॉल्व करके मैं दूंगा ये। हाँ, एंड तुम्हारा क्योंकि अभी तक तो मैंने लोग क्वेश्चंस भी नहीं देखे। हाँ ईशा, अनम्यूट कर सकती है तुम। सर आप एक बारी सीटीई के बारे में बता सकते हैं क्या? सीटी, हाँ, सो सीटी का हम फिर करते हैं। तो
क्या होता है, जैसे जब भी कोई क्वेरी हमें बार बार यूज करनी है, तो लेट्स से जो हमने पहले किया, सो हमने ये लेट्स से ये क्वेरी थी, थोड़ा क्लीन करता हूँ इसको। हमने क्या किया, प्रोविंस और डायग्नोसिस हर एक का निकाल लिया कि काउंट क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मेरे को ना ये क्वेरी बार बार यूज करनी है, सो या तो मैं ये करूँ कि ये क्वेरी बार बार लिखता रहूँ आगे। लेट्स से मैंने इस क्वेरी को इसके साथ ही ज्वाइन करना था, तो मैं ज्वाइन इसी के साथ ज्वाइन करके आगे वो करूँ। तो वो क्या करता है, वो जो तुम्हारा जो कोड तुम लिख रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीटी क्या करता है, इस जो तुमने जो भी क्वेरी लिखी है ना, पहले जैसे उस क्वेरी का रिजल्ट देख लो। ओके, तो ये इस टेबल में, अब इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी क्वेरी को मैं एक टेबल का नाम दे सकता हूँ विद एक्स एज। अब जो भी तुम नाम देना चाहो वो दे सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड अ सीटी। सो ये ही बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बस इसमें और भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है सीटी में। कि अब मैं सेम क्वेरी को, इस पूरी क्वेरी को रन करना चाहूँ, तो ये इसका रिजल्ट भी सेम होगा एंड इसका रिजल्ट भी सेम होगा। सो बस जो तुम्हारा बड़ा सा जो तुमने सीक्वल की क्वेरी लिखी है, उसको छोटा करने के लिए, अगर सिर्फ उसको बार बार यूज करना है या बाद में थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कोड तब यूज करना है, तब सीटीज काम आते हैं हमारे, कि रीयूज करने के लिए चीजों को। वरना क्या होता है कि तुम्हें ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ती। अगर मैं विदाउट सीटी कोई क्वेश्चन करता हूँ तो ऐसे करने पड़ते हैं फिर, कि अब तुम जैसे आगे क्या होगा, इसी को फिर मैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता रहूँगा, तो वो कोड रीड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए लोग फिर बाद में सीटीज का इंट्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे ये होता है हमारे उस कोड का सोल्यूशन, कि ग्रुप बाय, फिर और जितने हो सके ब्रैकेट्स पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। सो ब्रैकेट्स लगाने की बजाय सीटीज यूज करो, सिंपल है। सो एक ओके सो हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का? अनुज बस थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दीजिएगा। अगर मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है किसी न्यूमेरिकल डेटा वाले कॉलम से और किसी नॉन न्यू और किसी कैटेगोरिकल डेटा वाले कॉलम से मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो उसका लॉजिक क्या होगा एसक्यूएल? देखो, अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू लेट से सिर्फ इंटीजर्स है, हम क्या करते हैं, रुको मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ। सो लेट्स से तुम्हारा ये न्यूमेरिकल डेटा था और तुम्हें बोला गया कि इसमें से जो भी सबसे ज्यादा कॉमन है तुम्हें वो निकालना, राइट? यस। अब क्या होता है, अगर सिर्फ इंटीजर्स है तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है कि तुम इस पे ग्रुप बाय करके काउंट कर सकते हो, राइट? करेक्ट। और कैटेगोरिकल में तो वो होता ही होता है। कैटेगोरिकल में भी हमेशा हम ग्रुप बाय करके अच्छा, तुम्हें मोस्ट फ्रीक्वेंट, हाँ, ग्रुप बाय करके काउंट स्टार कर लोगे तुम, ए ए ए ए, तो वही करोगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम पे ग्रुप बाय करके काउंट स्टार कर लोगे, तो तुम्हारे पास हर एक की एक जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। फिर तुम ऑर्डर बाय कर दोगे अपने काउंट स्टार पे, एंड फिर लिमिट मतलब जो टॉप वैल्यू है तुम्हें वो मिल जाएगी, राइट? सो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल तो तुम ऐसे यूज कर सकते हो, बट लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये आ गई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बट स्टिल तुम यही यूज करोगे काउंट स्टार, मतलब उससे ज्यादा इजी कोई वे ही नहीं है। डेट्स वाले डेटा में क्या होगा अनुज? किसमें? डेट्स वाले डेटा में अगर डेट मुझे वाले मोस्ट में? फ्रीक्वेंट डेट अगर निकालना हो, हाँ डेट में भी सेम, ग्रुप बाय करो काउंट स्टार कर लो। ओके। मतलब ग्रुप बाय काउंट स्टार इज द ओनली बेस्ट वे पॉसिबल। फिर वरना विंडो फंक्शन वगैरह लगाएंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बट दिस इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे। फिर लिस्ट फ्रीक्वेंट में भी शायद वही होगा। किसमें? अगर हमें लिस्ट लीस्ट फॉर्म फ्रीक्वेंट में बस ऑर्डर बाय उल्टा हो जाएगा तुम्हारा, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में करके लिमिट लगाओगे। हर जब आपका क्वेश्चन पूछता है लिस्ट द पेशेंट्स, तो लिस्ट द पेशेंट में सिर्फ पेशेंट आईडी रिटर्न करना है या पेशेंट का नाम भी रिटर्न कुछ भी, मतलब ये देखो, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, डू एनीथिंग, मतलब कोई अपनी assumptions लो ना,
जो तुम्हें assumption तुम्हारी सही लग रही है, रीजनेबल है, वो assumption लेके सॉल्व कर दो। तो हमारे हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो अब देखते हैं, लेट्स से कि हम so, हमने बेसिक SQL कमांड्स वेयर क्लोज फिल्टर डिस्टिंक्ट। चलो आई थिंक तुम्हें मैंने डिस्टिंक्ट अभी तक नहीं बताया था बीच में। सो व्हाट वी कैन डू इज एक नॉर्मली हम सिलेक्ट स्टार वगैरह करते हैं तो हमारे पास कॉलम नेम्स वगैरह सब आ जाता है, राइट। अब क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हें ये पूछ लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता कि मेरे को सिर्फ पेशेंट आईडी चाहिए फॉर द पेशेंट्स हु गॉट एडमिटेड एटलीस्ट वंस, तो नॉर्मली तुम अगर सोचते हो तो तुम क्या करोगे, तुम एडमिशंस और पेशेंट्स टेबल ज्वाइन करके वो नल वगैरह वो निकालने की कोशिश करोगे। बट द इजीएस्ट वे वुड हैव बीन, मतलब एक सिंगल लाइन का आंसर है कि जितने भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं एटलीस्ट वंस। सो डिस्टिंक्ट हमारा तब काम आता है इन केसेस में जब भी कोई कहीं किसी पर्टिकुलर टेबल में बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं एंड तुम्हें सिर्फ यूनिक कॉम्बिनेशंस चाहिए। यूनिक सिर्फ एक कॉलम भी जरूरी नहीं एक कॉलम ही हो। अब लेट्स से तुम्हें ये भी बोल दूं मैं कि हर पेशेंट आईडी जो एडमिट हुआ और उसको मेरे एडमिशन डेट भी चाहिए, यूनिक एडमिशन डेट, क्योंकि एक अगर कोई पेशेंट बार बार एडमिट हो रहा है सेम पे, या फिर वर्किंग डे चाहिए मेरे को किसी डॉक्टर का, डॉक्टर तो मल्टीपल पेशेंट्स ट्रीट कर सकता है, तो किस किस दिन किसी डॉक्टर ने काम किया, सो उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ओके इस एडमिशन डेट के दिन ये डॉक्टर था, इस एडमिशन डेट के दिन भी ये डॉक्टर था। और अगर मल्टीपल रोज जितने भी डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं वो रिमूव हो जाते हैं जब हम डिस्टिंक्ट क्लोज यूज करते हैं। सो डिस्टिंक्ट का बेसिक हमारा यही रहता है। एंड बेसिक चलो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब बता देता हूँ मैं कि एडिशन करना हो दो कॉलम्स का तो ऐसे कर सकते हो, दो कॉलम्स या कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो ऐसे कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन का है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एक रिमाइंडर फंक्शन होता है कि इसका हम मेनली यूज करते हैं ऑड और इवन के लिए। अगर तुम्हारे पास ऑड, अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मेरे को एक कॉलम में चाहिए लेट्स से ऑड वैल्यूज का सम और एक कॉलम में चाहिए मेरे को इवन वैल्यूज का सम, तो अब तुम उसको विदाउट रिमाइंडर नहीं सोल्व कर सकते। तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो तुम्हें मॉड्यूलो बताया मैंने। एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को मेरे को एक कॉलम में चाहिए एवरेज हाइट ऑफ ओड पेशेंट आईडीज। सो फाइंड ओड पेशेंट्स की एवरेज हाइट चाहिए, इवन पेशेंट्स का एवरेज हाइट चाहिए। ओ सो ये दोनों चीजें मेरे लिए निकाल के दे दो, लाइक तुम्हें मैं 5 मिनट दे रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो ऑड और इवन मतलब उनकी पेशेंट आईडी से निकालना है। अगर 1 है, जैसे पेशेंट आईडी 1 है तो दैट इज ऑड, अगर पेशेंट आईडी 2 है तो वो इवन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। सो 5 मिनट दे रहा हूँ मैं।
अभी तक किया किसी ने? Okay, I'll give 5 more minutes for you. Like, in the same query, like I need the final result कि मेरे को 2 कॉलम्स चाहिए ऐसे साथ साथ, जैसे अटेंडिंग डॉक्टर आईडी एंड एडमिशन डेट है ना, मेरे को ऐसे साथ साथ में कॉलम चाहिए। अभी मैंने तुम्हें मॉड्यूलो फंक्शन समझाया, तो ये देखो मॉड्यूलो रिमाइंडर और ओड और इवन कैसे काम करता है उसके बारे में सोचो कि जब मॉड्यूलर में क्या होता है, कॉलम नेम को जिस वैल्यू से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ, चलो मैं मनोहर से शुरू करता हूँ। मनोहर, आज मैंने हाइट्स मांगी थी एंड तुमने सिर्फ मेरे को पेशेंट्स दिए, तो यहाँ पे ये तो गलत ही हो जाएगा कि मेरे को सिर्फ आईडीज मिली है और मेरे को एवरेज हाइट चाहिए थी। तो सॉल्यूशन इसका ये होता, हाइट डल जाती है यहाँ पे एंड एवरेज। ओके, जिसने ऐसे सॉल्व किया है हाइट के साथ, उनका सही होना चाहिए। एंड धीरज तुम्हारा तुमने ग्रुप बाय करके कर दिया, चलो दैट इज ऑल्सो गुड, बट उसमें मेरे को ऐसे 2 अलग अलग कॉलम्स नहीं मिलेंगे, मेरे को 2 रोज मिलेगी बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन, तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए था। And, हाँ, संदीप का बिल्कुल सही है एंड या ओके। सो जिसने नहीं किया उनको मैं समझाता हूँ। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है आपके लिए,
जो भी जिस वैल्यू से आप डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर देगा। तो ऑड और इवन में क्या होता है, ऑड होता है जिसका भी 2 से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। और इवन क्या होता है, जिसको भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमें मॉडुलस फंक्शन पता है क्या करता है कि हमें रिमाइंडर वैल्यू देता है। तो हम मॉडुलस फंक्शन से पेशेंट आईडी के ऊपर, पेशेंट आईडी को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका अगर जो रिमाइंडर है 0 नहीं है, मतलब 1 है, इक्वल टू 1 भी कर सकते थे, बट 0 नहीं है भी चलेगा। अगर 0 नहीं है तो वो पेशेंट क्या होगा, ओड पेशेंट होगा। और हमें क्या चाहिए था, ओड पेशेंट की हाइट। सिमिलरली सेकंड कॉलम बनाया जहाँ पे भी अगर इसका जो रिमाइंडर है पेशेंट आईडी को 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन पेशेंट है, एंड उसकी हमें फिर से क्या चाहिए, हाइट। एंड डायरेक्टली पूरा का पूरा एग्रीगेशन पूरे कॉलम्स पे लगाना है हमें, तो डायरेक्टली पूरा का पूरा एवरेज कर दिया हमने। सो ये था मॉडुलस फंक्शन विद दिस। सो अमन, द प्रॉब्लम दैट यू हैव, सो अमन तुम्हारे केस में सिंटेक्स एरर है। तो जब तुमने केस स्टेटमेंट यूज किया तो केस स्टेटमेंट तो तुमने पूरे कॉलम पे लगा दिया, बट तुम एग्रीगेशन सिर्फ हाइट पे लगा रहे हो। तो जो जब भी एग्रीगेशन हम केस स्टेटमेंट के ऊपर लगाते हैं तो कभी भी इनर वैल्यूज पे नहीं लगता, वो पूरे के पूरे, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम बताया था केस वन स्टेटमेंट एक नया कॉलम क्रिएट करता है। तो जो नया कॉलम क्रिएट किया है केस ने, वो केस से स्टार्ट होता है और एंड पे खत्म होता है। तो इस पूरे के पूरे पे ब्रैकेट लगेंगे, फिर आप एवरेज बाहर लगाओगे लाइक दिस, ये। सो ये पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे कॉलम की एवरेज करनी है तुम्हें, सिर्फ अंदर वाली वैल्यूज पे एवरेज नहीं लग सकता। सो दिस इज व्हाई योर आंसर इज नॉट वर्किंग। सो वो वहाँ पे सिंटेक्स एरर या कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ, कभी भी केस स्टेटमेंट की इनर वैल्यू पे एवरेज नहीं लगेगा, वो पूरे के पूरे कॉलम पे लगती है आपकी जो भी एग्रीगेशन होती है। तो हमेशा तो पूरे के पूरा कॉलम यहाँ पे आएगा। अब इसको अगर किसी और के साथ मल्टीप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो, बट केस स्टेटमेंट एक ओवरऑल पूरा का पूरी नई चीज क्रिएट करता है आपके लिए। तो केस स्टेटमेंट, क्योंकि केस स्टेटमेंट में हाइट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, तो अगर तुमने एवरेज अंदर लगा दिया तो पेशेंट आईडी क्या, तो वो पूरा का पूरा एक कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है क्वेरी के लिए। तो इसलिए वो काम नहीं करेगा, हमेशा एवरेज बाहर लगाओ या सम काउंट जो भी लगाना है। और मैंने देखा शायद मैंने पीछे की चैट्स मिस कर दिए हैं, तो मैं पूरा स्टार्ट से करता हूँ, बीच बीच में मिस हो गया था। ओके, स्क्रीन फ्रोज वगैरह डेट, संदीप का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वाला हो गया, ठीक है। इफ यू कर, ठीक है, यस यस। सीटी वाला तो वो आंसर, हाँ, 6th क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो हाँ, मल्टीपल कॉलम्स के ग्रुप बाय पिक, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स के ग्रुप बाय पे तुम पूरा का पूरा जो भी उस पर उस चीज के ग्रुप्स बनने हैं वो बना सकते हो। तो चलो एक्सेल में जाते हैं, एक्सेल में थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ आती है चीज़ें। लेट्स से कि तुमने क्वेश्चन किया मल्टीपल कॉलम्स पे अगर हम ग्रुप बाय करें तो क्या होता है। तो लेट्स से जेंडर एक मैं ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। इन सब की आपके यहाँ सैलरी है, सैलरी। तो एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड हम हाफ 50% मेल 50% फीमेल कर देते हैं, एंड फिर डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर देते हैं, ए बी एंड 1 2 3 जो भी वैल्यूज आ रही है वो डाल दे। अब लेट्स से अगर तुम्हें मैं ग्रुप बाय बोलता कि डिपार्टमेंट पे करो, तो तुम सिर्फ डिपार्टमेंट पे ग्रुप करते एंड उसके सम या एवरेजेस निकल जाते, तुम्हारे पास तो वैल्यू आ जाती डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, एंड जो भी तुमने सम किया, लेट्स से सम करते हैं, तो मैं सम किस किस वैल्यूज का रहता है, इसका 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 इसका, एंड सिमिलरली बी के लिए हमारा होता इस पे इस पे इस पे एंड इस पे, तो हमारे 4 सम हो जाती है। तो ये हमारी होगी सिंगल कॉलम पे अगर हम ग्रुप बाय करते हैं। अब मल्टीपल कॉलम पे जब तुम ग्रुप बाय कर रहे हो तो उन
जो भी कॉलम्स तुम डिसाइड करते हो, लेट्स से हमने अब जेंडर और डिपार्टमेंट करेंगे, तो उनके जो यूनिक कॉम्बिनेशंस है वो देखे जाएंगे। तो अभी मैं अब डिपार्टमेंट, जेंडर और डिपार्टमेंट पे करता हूँ मैं, लेट्स से जेंडर एंड डिपार्टमेंट। तो अब इनके यूनिक कॉम्बिनेशंस क्या क्या है? MA, MB, FA, FB, 4 कॉलम वो बनते हैं यूनिक वो एंट्रीज। एक तो ये हो जाता है हमारा, एक हो जाता है ये, एक हो जाता है हमारा ये, एंड एक हो जाता है ये। तो जो हमारे यूनिक ग्रुप्स बनते हैं, फिर उसके अंदर की जो भी वैल्यूज होगी उस पर एग्रीगेशन जो भी तुमने लगाना है, सम लगाओगे तो इन दोनों का सम होगा, यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका होगा, और फिर तुम साथ साथ में तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएगी M A B। तो जो भी तुमने यूनिक हमने निकाले थे ना, F एंड B, एंड यहाँ पे जो भी ग्रुप्स बने हैं उनके सम या एवरेजेस आ जाएंगे। तो ऐसे मल्टीपल कॉलम्स पे ग्रुप बाय काम करता है। इसमें अभी कोई डाउट है? तो हाँ, तो ये हो गया हमारा CTE में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब क्वेरीज हम अभी कवर नहीं करेंगे, कल करते हैं। कल हम सब क्वेरीज करते हैं। कल सब क्वेरीज एंड विंडो फंक्शंस करेंगे। And ये भी हो कवर कर दिया था मैंने, क्वेश्चन ही गलत था। सो हाँ, अमन का 15th क्वेश्चन। ओके, सो तो हाँ एग्जैक्टली मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है विज्ञान, मतलब मेरे को अब मतलब इससे ज़्यादा क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि प्रैक्टिस से तो नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट है, बैकग्राउंड का कंसेप्ट है। तो मल्टीपल कॉलम्स पे, छोटे छोटे टेबल्स पे अगर ट्राई करोगे तो होगा। चलो ग्रुप बाय वगैरह पे आई गिव यू मोर क्वेश्चंस कि मल्टीपल कॉलम्स पे ही कैसे कर किया जा सकता है। एंड अभी अमन का अब हम लास्ट चीज़ कर रहे हैं। अमन ने क्वेश्चन 15 पूछा है मेरे से। ओके, तो चलो क्वेश्चन 15 करते हैं। सो हमारा 15th क्वेश्चन क्या हो गया? फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ईच मंथ। चलो ये तो बहुत ईजी है, आ जाएगा हमारा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिशंस एंड जो भी है, मतलब डेट फॉर्मेट या मंथ करेंगे हम, मंथ ऑफ एडमिशन, डेट करेंगे, एंड काउंट डिस्टिंक्ट पेशेंट अंडरस्कोर ID एज CMT ग्रुप बाय। इससे हमारा बेसिकली ये बहुत इजीली आ जाएगा कि फर्स्ट वाला पार्ट तो है। अब हमें चाहिए कि मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस भी चाहिए एंड फॉर ईच मंथ चाहिए। अब मैं इसमें बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही अभी एक चीज दिखाई थी कि मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस प्रोविंस के लिए कैसे निकाला था, राइट? तो बिल्कुल सेम अप्रोच लगेगी हमारी कि मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस हर प्रोविंस का क्या है। तो इसको मैं यहीं पे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ विद x एज, तो हर मंथ का ये तो आ ही गया हमारे पास पेशेंट काउंट, एंड फिर अब मैं एक चीज़ और निकालूंगा कि हर मंथ का हमारे पास वो भी आ जाए डायग्नोसिस वैल्यू। तो हर मंथ का डायग्नोसिस काउंट स्टार कर लेते हैं हम इसको, और डायग काउंट बोल देते हैं। तो ग्रुप बाय हर मंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, स्पेलिंग तो हर मंथ का हमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायग्नोसिस है उसका डायग्नोसिस काउंट आ गया। अब मैं इसके ऊपर ग्रुप बाय लगाऊंगा जो मैंने पिछली बार किया था, Z एज कि इसका हमने लगाया ग्रुप बाय फ्रॉम
वाई लेंगे। अब क्या हम वाई से ग्रुप बाय उठाया अमन, एंड हमने क्या किया था, सेम इस मंथ जो भी ये वैल्यू होगी, चलो इसको मैं एम कर देता हूँ एस एम पे मैं ग्रुप बाय करूँगा एंड मैक्स ले लूँगा डायरेक्ट काउंट का। तो हमारे पास z में ये आ जाएगा। अब मैं z और y को ज्वाइन करके हमारे पास जो भी z और y को ज्वाइन करेंगे पे और इस पे, एंड हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग डायग्नोसिस आ जाएगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहा है, एंड ये हम निकाल ही चुके हैं। तो फिर x और जो रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको ज्वाइन कर देंगे। ये हार्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मल्टीपल सीटी या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगेगी। ओके, सो हाँ यही किया है मैंने एग्जैक्टली कि वही काउंट करके फिर, हाँ एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ मैं, तो यही करना है कि सी टी जो एक्स, ये मैंने एक्स लिया था, ये वाई लिया था, ये जेड हो गया था, फिर वाई और जेड को ज्वाइन करोगे। अगर वही किया पूरा सी टी एंड सी टी थ्री को नहीं नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है तुमने तो अब जब जब भी तुम जो ये तुमने सी टी थ्री में किया, सी टी थ्री एंड सी टी टू को ज्वाइन करना वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, काफ़ी लोग करते हैं। मनोहर ने दिया ना, हाँ मनोहर, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और काफ़ी लोग करते हैं। तो तुमने यहाँ तुम्हें लग रहा है कि जो ये रिजल्ट है सी टी टू से उठाया तुमने, हाँ गिव मी अ सेकंड, ये इसने ग्रुप बाय किया। तो इसमें क्या होता है कि तुमने ग्रुप बाय तो मंथ पे लगाया एंड मैक्स तुमने ये लिया, एंड यू आर थिंकिंग कि तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग डायग्नोसिस मिल जाएगा जस्ट बाय पुटिंग इट ओवर है। ऐसा नहीं होता। तो जिस पे तुमने ग्रुप बाय लगाया वो तो डिस्टिंक्ट रहेगा, मैक्स काउंट लगाया मैक्स काउंट लग जाएगा। बट जो ये डायग्नोसिस है ये जरूरी नहीं है जिसका मैक्स काउंट है वही हो, ये एक रैंडमली उठाई हुई वैल्यू आएगी। तो दिस इज कम्प्लीटली मतलब ऐसा ग्रुप बाय में जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें जो सी टी टू एंड सी टी थ्री था उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसमें सी टी टू एंड सी टी थ्री का ज्वाइन भी होना चाहिए था, फ्रॉम लाइक सी जो सबसे पहले तो सी टी टू एंड सी टी थ्री का होना था मंथ एंड मैक्स काउंट पे, जो भी मतलब होता काउंट मैक्स, तब जाके तुम्हें डायग्नोसिस मिल जाता। फिर इसको बाद में तुम फिर ज्वाइन करते हैं ऑन सी टी फॉर द मंथ। तो हाँ, ओके, हाँ मन ठीक है। ओके देख रहा हूँ मैं, काउंट ऑफ पेशेंट्स आ गया A2 से तुमने। देखो रैंक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है रैंक विल, बट क्या होता है कि तुम्हें इंटरव्यू में लिमिट करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इफ अगर तुम्हें रैंक ना पता हो तो कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि पुराने, अगर कुछ कंपनी है जो पुराने अपने माई सीक्वल के सर्वर पे रन हो रही है और वहाँ पे विंडो फंक्शंस नहीं है, अगर विंडो फंक्शंस वहाँ पे नहीं है तो काम कैसे करोगे। तो दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए। तुम्हारी जो रैंक वाली अप्रोच है वो तो डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट है, बट मैंने अभी तक विंडो फंक्शन सिखाया नहीं है तो आई कांट लाइक मैं वो चीज़ शेयर नहीं कर सकता। बट तो ऑल्टरनेट जो तरीका है वो मैंने तुम्हें बताया, प्राइमरी सॉल्यूशन तुम्हारे वाला ही है, बट विंडो फंक्शन जब हम कवर कर लेंगे तब हम वहाँ पे आएंगे। एंड अलग अलग अप्रोच से सेम प्रॉब्लम को मल्टीपल अप्रोच से देखना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ से फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। एंड तुम्हें इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा लिमिट किया जाता है कि अगर ये नहीं आएगा तो कैसे करोगे, अगर ये नहीं आएगा तो कैसे करोगे। तो ओके हाँ, तो आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर टुडे। हाँ तो कल हम सीटी हो गया हमारा, कल हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस लास्ट में ही करते हैं इस पे, मतलब ये सिर्फ एक दो बार करने वाली चीज़ है। डेट टाइम केस नल फिल्टर हो गया, एग्रेशन हो गया, ज्वाइन हो गया,
चलो फिर कल हम यूनियन सब क्वेरीज एंड अगर पॉसिबल हो पाए तो विंडो फंक्शंस भी करते हैं, एंड जो हार्ड वाला जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन एंड मैं मतलब जिसने भी सबमिट किया वो सबका मैं देख के बताता हूँ। हाँ, जब भी टाइम मिलेगा मेरे को। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी वन है? चलो फिर मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। ओके चलो फिर कल मिलते हैं। बाय गाइस।